जब आप लास्ट के 4 महीने पढ़ाई कर रहे हो और कभी किसी दिन ऐसे डीमोटिवेट हो गए कि आज जो टारगेट था वो टारगेट पूरा नहीं हुआ है करके, ठीक है, तो कैसे आप अपने आप को उससे बाहर निकालते थे? आपकी ऑडिट में आपको 93 मार्क्स मिला, राइट? बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो क्लियर नहीं हो पाए, या आपके जूनियर ऐसे बहुत सारे हैं जो मई 2024 में एग्जाम दे रहे हैं। आप उनको क्या बताना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो जैसा कि आपको पता है, नवंबर 2023 के आज रिजल्ट आए सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल में, और आज मेरे साथ में जो है वो ऑल इंडिया रैंक 1 सीए इंटरमीडिएट के जय झिमुलिया, जो मुंबई से ही रहने वाले हैं, और इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 स्कोर किया। 691 मार्क्स है वो इन्होंने स्कोर किए। सबसे पहले तो जय, बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए। थैंक यू सो मच। कैसे पता चला सुबह के रैंक आई, और उसके बाद का रिएक्शन क्या था पापा का, मम्मी का? Okay, so I was at NM college when the president's call had come. Okay. So when he called, he said that you secured AIR1. You have scored 691 on 800, and congratulations. So like I was really happy at that point. So then I went back in the class and I told everybody, and they were very happy. Yeah. And then when I returned home, like my father already knew he had got messages from other places as well. Okay. Yeah. So it was a very happy atmosphere. Yeah. Okay, so you were expecting that you will score the rank, and that too AIR1? Not necessarily AIR1, because obviously it's dependent on the relative performance, right? True. How the others are performing and compared to that. So usually I used to set the marks ke target. Like the best case scenario was like 720 marks out of 800. Okay. And the worst case scenario was like 650. And it was like the middle of I thought. Very nice. अच्छा जे, लाइक इन फ्यूचर जैसे ही सीए तो हो ही जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बट सीए के बाद क्या करने का सपना है? Okay, so my main interest is in corporate finance, financial management, जो last paper है ना उसमें. So I like the corporate finance valuations. So mostly I might go in investment banking, deal advisory. Yeah, I might go in the wealth management, portfolio management fields. Yeah. So जय, जैसा कि आपके मैं मार्क्स देख रहा हूँ, इतने प्यारे मार्क्स हैं, और स्पेशली इन द टैक्सेशन यू स्कोर द 96 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। सो मैंने जब स्टूडेंट से बोला कि 96 मार्क्स आया, तो किसी स्टूडेंट ने बोला कि इस पे तो 2 बच्चे पास हो जाते हैं। सो हाउ यू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन? एंड जैसा कि तुमसे बात करके मुझे पता चला कि आउट ऑफ द 8 पेपर 3 सब्जेक्ट आपने सेल्फ स्टडी किया था। सो ऐसा क्यों लगा कि सेल्फ स्टडी करना चाहिए? एंड सेकंड क्वेश्चन इज कि लाइक आज की डेट में आप मुंबई में हो, तो मुंबई में बहुत सारी फेस टू फेस क्लासेस भी है, लेकिन आपने जो 5 सब्जेक्ट किए वो पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव क्लासेस से किया, तो व्हाई यू सेलेक्टेड गूगल ड्राइव क्लासेस ओवर द फेस टू फेस? Okay, so this is a 3-part question, right? So I'll come to the first one, the taxation. So मुझे खुद भी एक्सपेक्ट नहीं था कि taxation में 96 जितना आएगा, क्योंकि for me the taxation was like the lengthiest paper and it was harder than normal also. True. The direct tax particularly total income में 3 टाइम कैलकुलेट था, इसलिए तो even I didn't expect 96, but what I used to do a lot of writing practice, like both for direct tax and indirect tax. And indirect tax में बहुत amendments आते हैं, like 40 marks का indirect tax होता है, तो उसमें at least 20 to 25 marks was from the amendment section. True. So every time ICI comes up with a statutory update of around 50 to 100 pages. Right. तो वो बहुत बराबर करके जाना चाहिए. Next part was why you selected the pen drive, Google Drive classes over face to face classes? Okay. Because in Mumbai face to face classes also available. Yeah. So face to face classes, the main disadvantage I thought of face to face classes is that they don't let you ponder over the question for very long. They just give you the answer directly. They rush with the syllabus. So I didn't want to do that. They spoon feed you the answers at times. So मुझे चाहिए था कि I can pause in the middle, फिर मैं खुद सोचूं उसके क्वेश्चन या आंसर या टॉपिक के बारे में, उस फॉर्मूला, जैसे पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम था ना, उसमें आई डेवलप माय ओन मेथड टू रीचेक द आंसर. अच्छा. तो इट वाज लाइक वेरी इंटरेस्टिंग. सो माय इंटरेस्ट फर्दर इंक्रीज. एंड फेस टू फेस में वैसा होता कि ट्रैवलिंग टाइम तो बचता ही है, पर मेन वही था कि वो एनालिटिकल स्किल डेवलप हो, कि एग्जाम में ज़्यादा हेल्पफुल होता है. ट्रू. तो जैसा जय ने बोला कि एनालिटिकल स्किल है वो बहुत ज़्यादा जरूरी रहती है. जब कोई भी प्रोफेसर आपको क्वेश्चन देता है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मैं उसका आंसर चालू करूंगा, उससे पहले आप एटलीस्ट ध्यान रखो कि क्या होना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि इसका आंसर ऐसे बनेगा. और फिर क्या होता है ना, उसमें अगर आपका आंसर सही आता है तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, और अगर गलत आता है तो फिर वापस आप ये गलती नहीं करते हो, याद रह जाता है, इधर ही मिस्टेक हुआ था, और एग्जाम में भी वही याद आता है कि उधर ऐसा नहीं करना है. वैसे ट्रू.
टैक्सेशन की जो बात कर रहे थे हम लोग, डीटी आपने मेरे से किया, आईडीटी आपने विशाल सर से किया, ये पेपर बहुत वास्ट है, सो हाउ यू मैनेज इन द लास्ट 1.5 days? Okay, in the last 1.5 days, मेरा भी पूरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ था. It was like the capital gain and the PGBP topic वो last half day का बाकी था, मतलब in the half day morning होता है ना उसमें. तो mainly तो I relied on the provisions which I had revised earlier. True. And the more you revise, you become more fluent at it. तो उतना जल्दी हो जाता है half day revision पे. पर again I told कि जो statutory update आता है ICA का for indirect tax especially, वो मैंने जो प्रीवियस डे वन डे मिलता है ना उसमें बहुत बराबर करके गया था, तो उसमें से बहुत आया था. तो या गुड. सो टैक्सेशन में जैसे टीडीएस टीसीएस टॉपिक है, सबसे बड़ा टॉपिक है, और बच्चों को तो बड़ा डर लगता है, बहुत सारे लोग ऑप्शन में छोड़ के चले जाते हैं, बट मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि उसमें 6 या 8 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, 7 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, और इजी क्वेश्चन रहते हैं. सो हाउ यू मैनेज द टीडीएस टीसीएस टॉपिक? Okay, so again the writing practice is very important. So if you write it down twice rather than read it 10 times, I would prefer writing twice. Okay, तो वो है. फिर क्वेश्चन आंसर जो कंपाइलर बुकलेट दैट आल्सो वेरी हेल्पफुल बिकॉज उसमें आरटीपीस के ही थे, एंड अगेन यू कैन गो फर्दर विद द एमटीपीस एंड द पास्ट पेपर्स, तो उधर ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है. तो फिर इवेंचुअली यू स्टार्ट रिमेंबरिंग, लाइक इट्स इनहेरेंट इन यू ओनली, तो इट्स नॉट अ बिग इशू देन लेटर ऑन. ओके, लाइक मेरे को कुछ बच्चों से मैंने क्वेश्चन मांगे थे, उन्होंने क्वेश्चन मुझे पूछे. एक बच्चे ने पूछा कि हाउ यू मैनेज द कॉस्टिंग पेपर. Okay, costing. Okay, so costing में my first suggestion would be कि don't treat everything as a formula जो you have to remember रट्टा कर का वैसे. Like standard costing में इतने सारे formula है, तो I had come across one ACCA का article, ACCA website लंदन में, उसमें they had given one graphical interpretation of standard costing, and उसकी वजह से I could remember everything in one flow only. तो इसलिए you should not remember everything, you should understand the why, मतलब क्यों ये formula, why does it, how does it work. So that will help you to reduce the memorization part. And obviously practice तो चाहिए सब जगह में, practical सब न्यूमेरिकल है तो. वन मोर क्वेश्चन जय, जैसे आपने अकाउंट जो है फर्स्ट ग्रुप वाला लॉ है एंड ईआईएसएम आपने सेल्फ स्टडी किया, तो कैसे किया? लॉ जो स्पेशली सब्जेक्ट है, बहुत बार लॉ में ऐसा होता है बच्चों का पेपर के बिगड़ गया, थियरी को कैसे मैनेज किया आपने? तो मैंने पर्टिकुलरली ये 3 सब्जेक्ट के लिए नहीं लिया था. फर्स्टली कॉर्पोरेट लॉ एंड ईआईएसएम, दे आर थियरी सब्जेक्ट्स. सो उसमें आई थिंक द मोर यू सेल्फ स्टडी, लाइक कंपनीज एक्ट में तो बेयर एक्ट की पढ़ना चाहिए, तो दैट्स व्हाट माय स्ट्रेटजी वाज फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली. तो द मोर टाइम्स यू रीड दैट लीगल लैंग्वेज, तो मोर ग्रिप आएगा उस पे. राइट. इवन ईआईएसएम इट्स अ थियरी सब्जेक्ट, तो जितना मॉड्यूल एंड आईसीए स्टडी मटेरियल से पढ़ोगे उतना ही बेहतर है. गुड. अच्छा, लास्ट के कितने मंथ के लिए आपने जो क्लासेस कंप्लीट होने के बाद आपने कितना टाइम दिया सेल्फ स्टडी के लिए? Okay, so I reserved like last 4 to 5 months around for classes, for self study in the end. Like last 4 to 5 months for self study, and उसमें I had compiled कि RTPs, MTPs और past papers of ICAI from 2018 till 2022. मैं सारे कर नहीं पाया था, पर जितने हुए मैक्सिमम उतना ट्राई करना चाहिए. बट ओरिजिनल अटेम्प्ट जो आपका था that was May 2023, but you like skip that attempt. Why? Okay, so firstly तो I had regular college to attend, like you have to maintain the attendance at NM college, and again I cannot prepare in a rushed manner कि ऐसे एक चैप्टर एक दिन में या वैसे, मतलब I want to explore more into the topic, कैसे आता है फॉर्मूला क्या वैसे, तो I didn't want to rush the preparation. Okay, that's why. तो इन्होंने क्या किया कि इनका एग्जाम था वो मई में था, बट ड्यू टू द कॉलेज, बिकॉज एनएम कॉलेज है मुंबई में और वहाँ पे छुट्टियाँ अलाउ नहीं है और कॉलेज जाना रहता है, और उसके बाद में उन्होंने ये नवंबर एग्जाम दिया और उसमें ऑल इंडिया रैंक 1 स्कोर किया और 5 मंथ का उन्होंने प्रॉपर रिवीजन किया. तो मेनी टाइम जब आपके पास में ऐसा है कि लाइक टाइम कम है, तो यू कैन प्लान इन सच अ वे ऑल्सो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके बाद AR1 ला सकते हो. मैंने जब अर्जुन मेहरा का इंटरव्यू लिया था, उसने भी वैसे ही किया था, बिकॉज उसका भी कॉलेज था तो उसकी वजह से उसने भी एग्जाम पोस्टपोन किया. पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर टेकिंग 6 months एक्स्ट्रा तो यू स्टार्ट रिलैक्सिंग या बिकम कॉम्प्लेक्स. यू हैव टू बी एकदम सीरियस फ्रॉम डे 1, एंड लाइक फाउंडेशन का एग्जाम जो इकोनॉमिक्स का लास्ट पेपर होता है उस दिन में से ही मुझे पता था कि ये बहुत बड़ा कोर्स है, तो आई स्टार्टेड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जैक्टली. सो लाइक जय, ऐसी कोई चीजें जो आपको लगता है कि यार रैंक लाने के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड इफ यू फॉलो दिस रूल यू कैन स्कोर द गुड मार्क्स? ओके, तो फर्स्टली तो I think hard work and consistency that should not be told on separately. मतलब it's obvious, it's unsaid rule कि you should be that. True. Like every course requires that. अगर IIT जाओ या किधर भी foreign university जाओ, वहाँ it's rigorous. तो even over here it's no exception. तो hard work and consistency is obviously important.
फिर जो पेनड्राइव क्लासेस है लाइक पीपल वॉच इट एज इट्स अ मूवी और समथिंग लाइक दैट 2x स्पीड पर देखते हैं और वो सब आई डोंट लाइक दैट एट ऑल मैक्सिमम आई हैव बीन लाइक 1.25 जब आई ऑलरेडी सॉल्व द क्वेश्चन इन एडवांस एंड आई जस्ट वांट टू क्रॉस वेरीफाई द आंसर so that is the only point so you should not like fast forward anything True. because it's the first time you are learning all so and it's the first time we are introduced to all these new subjects like costing taxation सब नया है ना तो इतना स्किप क्यों करना है मतलब फास्ट फॉरवर्ड क्यों करना है हाँ कहाँ जाना है फास्ट फॉरवर्ड करके हाँ वही तो आराम से देखो हाँ बुलेट ट्रेन थोड़ी है कि ऐसे ही स्किप करते जाओ ट्रू एंड लाइक कितने घंटे दिन में पढ़ाई हो जाती थी इफेक्टिवली okay so I had to go to NM college first right पर उसमें also some of the faculties are very nice like many of the subjects are same as well and वो लोग आपको सेल्फ स्टडी भी करने देते थे अगर they knew कि you were serious and all ट्रू तो उधर 4 घंटे की पढ़ाई हो जाती थी फिर at home I used to do more 7 to 8 hours so approximately 12 hours on average सो कॉलेज में जो पढ़ाई होती थी 4 घंटे हाँ. वो कॉलेज की ही होती थी या सिमिलर सिमिलर सब्जेक्ट मतलब अगर वहाँ भी FM चल रहा है तो आई टेक द FM का RTPs एंड MTPs ओवर देयर टू सॉल्व एंड उधर ही उतना ही इफेक्टिवली होता है क्योंकि डिस्कशन भी उसी पर चल रहा है तो उतना हैम्पर नहीं होता एफिशिएंसी में ट्रू ट्रू तो दिन में 10-11 घंटे पढ़ाई हो जाती हाँ, थी एंड लास्ट के लास्ट टाइम में तो लास्ट टाइम आई थिंक इट्स टू एक्सटेंड टिल 15 hours 16 hours मे बी ओके एक बार तो 19 hours भी हो गया था पर देन इट वाज लाइक ऑन द नेक्स्ट डे आई रेस्टेड मोर तो ऑन एवरेज इट इज लाइक 14-15 hours इन द एंड ओके कभी ऐसा मन नहीं करता था लाइक कहीं घूमने चले जाओ या मोबाइल बहुत ज्यादा यूज कर लो जैसे आजकल इंटर के बच्चे होते हैं सो ये जो एज होती है उसमें हर किसी का ये मन करता है कि चलो यार घूमने चले जाए फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने चले जाए पार्टी कर ले या मोबाइल ज्यादा यूज कर ले ऐसा कभी हुआ मतलब देन यू हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ ना कि व्हाट इज योर प्रायोरिटीज मतलब अगर आपको 8 to 9 या 12 months तक इतना ही है तो उसके बाद तो फ्रीडम ही है मतलब 3 महीने अभी तो फ्री था मतलब तो ऐसा नहीं है कि एंटरटेनमेंट यू कैन स्टॉप एंटायरली यू कैन डिवोट हाफ एन आवर 1 hour जो भी है नॉर्मल टाइम उसके अलावा पर यू शुड कीप इट इन द लिमिट लाइक अ कंट्रोल राइट अच्छा कभी ऐसा हुआ कि लाइक जब आप लास्ट के 4 महीने पढ़ाई कर रहे हो और कभी किसी दिन ऐसे डीमोटिवेट हो गए कि आज जो टारगेट था वो टारगेट पूरा नहीं हुआ है करके ठीक है तो कैसे उसको अगर हुए या नहीं हुए पहली चीज तो ये एंड दूसरी चीज अगर आप होते थे तो कैसे आप अपने आप को उससे बाहर निकालते थे ओके तो ये तो बहुत बार हुआ है कि लेकिन सितंबर तो आई वाज एकदम burnt out or something so उसमें the only solution is either you set very realistic goals पर होता नहीं क्योंकि हमको obviously ज़्यादा अचीव करना होता है right तो what you can do is you can adjust your future plans so I used to make weekly plans I didn't used to do the daily hourly basis planning because उसमें बहुत accuracy चाहिए होता है rather जो वीकली होता है वो बैलेंस हो जाता है अगर एक दिन थोड़ा कम हुआ तो उसे नेक्स्ट डे ज्यादा कर लेंगे वैसे तो आई शुड सेट द वीकली प्लान्स एंड इफ इट वाज नॉट अचीव्ड देन आई यूज्ड टू रीएडजस्ट द फ्यूचर के थोड़ा ज्यादा करना थोड़ा कम तो था नहीं ज्यादा ही राइट गुड और जैसा मुझे पता चला आपके पापा भी सीए है मम्मी भी सीए है तो उनका क्या रोल रहा आपकी प्रिपरेशन को लेके ओके सो दे हैड अ वेरी बिग रोल ऑब्वियसली तो पहले तो इट वाज लाइक द गुड इक्विपमेंट एंड द गुड एटमॉस्फेयर व्हिच इज क्रिएटेड इन द होम सो लाइक आई हैड अ वेरी गुड लैपटॉप टू व्यू द पेन क्लासेस फ्रॉम एंड ऑल फिर even the support which I got like whenever I had any query in direct tax I used to ask my father because he's a practicing CA he knows everything about the TDS capital gain income great that helped a lot राइट उसके बाद में जो अपन बात कर रहे थे लाइक सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे आप नहीं हो राइट नहीं आई एम नॉट ऑन इंस्टाग्राम आई एम नॉट ऑन फेसबुक आई एम नॉट ऑन ट्विटर एज वेल आई एम ओनली ऑन लिंक्डइन फॉर द जॉब अपडेट्स और वो सब एंड Telegram for the CA exam related updates and WhatsApp group for the college का notifications. अच्छा सो लाइक ऐसा कभी हुआ कि कॉलेज की वजह से तुम्हारी स्टडी हैम्पर हो रही है जैसा मुझे पता चला कि अभी तुम्हारे कॉलेज के भी एग्जाम थे हाँ, और उसके एग्जैक्टली बाद आपके सीए के एग्जाम थे हाँ तो इट वाज लाइक 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर मेरी कॉलेज की सेमेस्टर एग्जाम्स थी और उसके बाद 2 नवंबर से इमीडिएट चालू हुआ सीए ग्रुप 1 एंड देन टिल 17 नवंबर सो इट वाज लाइक 30 consecutive days of exams पर जो सब्जेक्ट्स थे 9M कॉलेज में वो बहुत सिमिलर थे लाइक 7 सब्जेक्ट थे उसमें तो 6 सब्जेक्ट सेम टू सेम ही थे ऑडिट था FM था कॉर्पोरेट लॉ था तो हैम्पर तो नहीं हुआ वैसे उल्टा एक सिनर्जी हो गया लाइक डबल रिवीजन हो गया जितना I wouldn't have been able to do in that last 15 days so much if there was no exam. Because वो एग्जाम का स्ट्रेस रहता है तो अगर ऑडिट का पेपर था उधर सिलेबस थोड़ा कम था पर I used to do the inter CA only full syllabus as much as possible तो
ज़्यादा हेल्पफुल होता। राइट, ओके, सो ऑडिट की जैसे आपने बात की, ऑडिट में आपको 93 मार्क्स मिला, राइट? 93 इन द ऑडिट इज लाइक बहुत बड़ी चीज होती है, बिकॉज वो सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें 93 स्कोर करना बहुत बड़ी बात है। आपने कैसे उसको प्रिपेयर किया और लास्ट डे तक कैसे रिमेंबर किया? बिकॉज बहुत सारी चीजें रहती है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट्स है, ये है, वो है, और उसमें इतना अच्छे से लिखना, तो कैसे आपने प्रैक्टिस किया? क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ये मुझे पूछा कि ऑडिट को कैसे प्रिपेयर करें। ओके, तो ऑडिट इज लाइक you need to know the technical terminologies. So उसमें स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, तो आई यूज्ड टू रेफर द आईसीएम मटेरियल एज वेल एज दोस बेयर प्रोनाउंसमेंट आते हैं ना ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के। बहुत लोग बोलते हैं कि इग्नोर कर दो, मतलब मॉड्यूल में इनकॉर्पोरेटेड है, पर इफ यू लुक एट दैट बेयर स्टैंडर्ड यू विल फाइंड आउट हाउ इट्स फ्लोइंग थ्रू लाइक द गोइंग कंसर्न स्टैंडर्ड एंड देन अदर स्टैंडर्ड्स एज वेल। सो फर्स्टली तो यू शुड रेफर बोथ ऑफ देम अकॉर्डिंग टू मी, लाइक डोंट रीड एवरी लाइन ऑफ इट बट एटलीस्ट सी हाउ इट्स फ्लोइंग थ्रू द स्टैंडर्ड। फिर राइटिंग प्रैक्टिस ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, मतलब आई हैड मेड वन 400 पेजेस नोट्स ऑन ऑडिटिंग एंड देन बहुत लंबा हो गया था ना, तो आई देन समराइज इट इनटू 50 पेजेस। सो 50 पेजेस में लाइक वेरी टाइनी हैंडराइटिंग में 50% ऑफ द सिलेबस वाज कंप्लीट, लाइक ऑल द स्टैंडर्ड्स। तो इफ यू राइट सो मच ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत तो याद रह ही जाता है। एंड फिर देयर आर लॉट्स ऑफ बुलेट पॉइंट्स इन ऑडिटिंग, सो मैनी पीपल से निमोनिक्स बना लो फिर याद कर लो, पर मुझे निमोनिक्स इतने पसंद नहीं थे कि कितने निमोनिक्स याद करो, निमोनिक्स के निमोनिक बनाने पड़ेंगे, इतने सारे निमोनिक बन जाएंगे। तो what I did, I used to group the similar points together. So there was like materiality पे you can group 2-3 points together. The audit risk, risk of material misstatement. Accordingly you can find out the linkages. So वो logical connection बनता है ना, तो it's much more easier to recall in the exam as well. True. Good. जय, जैसे ये एग्जाम हुआ, एग्जाम में रिजल्ट रहा अप्रोक्स 9-10% फॉर द बोथ ग्रुप। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो क्लियर नहीं हो पाए, या आपके जूनियर ऐसे बहुत सारे हैं जो मई 2024 में एग्जाम दे रहे हैं एंड वो आपके जैसा बनना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको वो एडमायर करते हैं। आप उनको क्या बताना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? ओके, सो फर्स्टली तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू डू हार्ड वर्क। उसके साथ इफ यू हैव अ गुड स्टडी ग्रुप, but it should be like कि they are of a similar intellectual skill, similar analytical skill and similar motivation. True. तो अगर ऐसा ग्रुप मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, वरना I think self study is better. And in terms of subjects तो अब 6 सब्जेक्ट ही हो गए तो बेटर ही हो गया है, तो वैसे तो अच्छा ही है। राइट, सो थैंक्स अ लॉट जय, और आपको बहुत बहुत बधाई हो अगेन। एंड उसके साथ साथ में आप सीए फाइनल में भी ऑल इंडिया रैंक 1 लाओ। मैं प्रेशर नहीं डालना चाहूँगा, बट ट्राई योर बेस्ट, और मुझे पता है कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। अभी मैं आपको मिलवाना चाहूंगा जय के फादर से, और जय के फादर जी जो है वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उनको आज कैसा लगा, क्या लगा, उनको मैं मिलवाता हूँ। यस, तो मेरे साथ है देवांग जी, जय के फादर जी। तो सर जी, आपको जब सुबह पता चला कि जय की रैंक आई, और कैसा माहौल था घर का? I was very happy. यस, एंड सर आपने एक्सपेक्ट किया था कि ही विल स्कोर द ऑल इंडिया रैंक 1? I had expected a rank, but not one. Right. But it's all due to his hard work and efforts. He went all the way there. यस सर, जैसा आप भी अपने टाइम पे सीए में रैंक कर रहे हैं, इंटरमीडिएट एंड फाइनल दोनों लेवल पे, तो सर लाइक आप क्या चाहते हैं जय से? I have left the entire decision to him. Whatever he wants to do, he can pursue on his own. There is no force from my side. We are always there as a backing. We already have a practice. If he wants to join, he's welcome. If he wants his own choice, he's welcome. Right. No force on him. Great sir, great. Yes. तो लाइक मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, बिकॉज लाइक आपके सुपुत्र ने ऑल इंडिया में रैंक लाना और रैंक 1 लाना वो बहुत बड़ी बात होती है सर। आपका ये आपकी मेहनत है, आपका हार्डवर्क है, जय का हार्डवर्क है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यू आर ओनली मेकर एंड ब्रेकर ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ को कैसे जीना है वो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो, और कोई डिसाइड नहीं कर सकता। तो जो भी लोग एग्जाम दे रहे हैं मई 2024 में, आप कुछ ना कुछ सीखे, और जैसा जय ने बोला हार्डवर्किंग, बिकॉज बिना हार्डवर्क के इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। और जो कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी बोलने में बहुत ईजी है, बट उसको फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट है करके, ठीक है? आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहे, बिकॉज ये ऐसा कोर्स है जिसमें आप जब 4-5 महीने एक जगह बैठ के 12-13 घंटे 15 घंटे पढ़ते हैं, तब आपको जो डिजायर रिजल्ट है वो आपको मिलता है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन मई 2024 वालों के लिए। एंड जय के फादर जी, आपको बहुत बहुत बधाई वंस अगेन। Thank you. I just add something to that. Yes, there's no shortcut to success. Yes sir, there is no shortcut to success. Your hard work is the only way out. यस, हमारे यहाँ पे हिंदी में लिखा होता है कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, ठीक है? बिकॉज, और सर मैं बताऊँ ना, मेनी टाइम
हार्ड वर्किंग स्टूडेंट जो होता है वो टैलेंट को बीट कर देता है, राइट बिकॉज एक लाइन है कि हार्ड वर्क बीट टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। बराबर है। सो आप टैलेंटेड हो तो भी आपको हार्ड वर्क तो करना ही Hard work तो पड़ेगा, करना ही है सर। बिकॉज बिना हार्ड वर्क के कुछ भी नहीं मिलता है। Yes. थैंक्स अलॉट पीपल एंड थैंक्स अलॉट टू Thank you so एंड much. देवांग। थैंक यू Yes. सर।